Hello viewers, today I am going to tell you about the CSS box model. In CSS, the term box model is used when talking about design and layout. The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It consists of margin, border, padding, and actual content. The image below illustrates the box model. Explanation of different parts of box model. डिजाइनिंग से रिलेटेड जितना कुछ है वो बॉक्स मॉडल के अंदर आता है. फर्स्ट इज कंटेंट. द कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेज अपीयर. पैडिंग क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट. द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट. Border, a border that goes around the padding and content. Margin, margin clears an area outside the border. The margin is transparent. The box model allows us to add a border around the elements and to define a space between elements. Now the how to make the box around the text. For that you have to define the style. Background color light gray, width 300 pixel, border 15 pixel, solid green, padding 50 pixel and margin 20 pixel. Now you want to make a box around the text. And in demonstrating the box model, the CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It consists of border, padding, margin and actual content. This text is the content of the box. We have added a 50 px padding, 20 px margin and a 15 px green border. So let's see how it will work. It will give this one. This text is the content of the. अब ये सारा बॉक्स के अंदर दिखेगा. तो कहीं पे भी आपको कुछ भी बॉक्स के अंदर लिखना है तो आप बॉक्स मॉडल यूज कर सकते हैं. Now you want to insert the picture in between the around the picture border. If you want to insert a border around the picture, then you have to write, in order to set the width and height of element correctly in your browser, you need to know how to box model work. अब हर जगह एक जैसा बॉक्स मॉडल का विड्थ हाइट नहीं होगा. उसको कैसे हम सेट करते हैं वो बताना होगा. पहले हम पिक्चर बता दें फिर बताते हैं. Width is 320 pixel, padding 10 pixel, border 5 pixel, solid gray, margin 0. Calculate the total width of the picture. पिक्चर की width हमारी 350 हुई. यहाँ से इसको जोड़ लीजिए. 320, 10 pixel and 5 pixel. और हाइट और विड्थ उसकी ले ली और उसमें विड्थ देके ज़्यादा लिया. यहाँ पे है 335 है ना. 320 उसकी 335, यहाँ 350 ज़्यादा ली. हाइट 263 ले ली और पिक्चर डाल दी. The pictures above is 350 pixel wide. The total width of this element is also 350 pixel. So go down. Here is the calculation. 320, 20 pixel and 10 pixel and margin is 0 pixel. यहाँ पे कुछ गलत डिफाइन है. 10 यहाँ पे padding 20 and border 10 होना चाहिए. padding 20 and border 10. Then it will become a 350. Now run it. अब यहाँ पर ये 350 के हिसाब से आ गया. यहाँ कैलकुलेट किया ना. 320 पिक्सल विड्थ लिया पिक्चर की. इसमें 20 पिक्सल राइट पैडिंग और लेफ्ट पैडिंग है और 10 पिक्सल
10 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर है, इसलिए 5 था वो, क्योंकि यहाँ पे ये, इसको समझिए, ये 5 था और ये 10 था, इसलिए क्योंकि इट्स एडिंग बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट लेंगे तो यहाँ पे 10 10 20 हो जाएगा और यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा। तो जब हम ये इसको करेंगे तो फोटो प्रॉपर वे से 50 में आएगी। तो इस तरह से कोई भी फोटो की अगर हमको विड्थ पता है तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट देखिए, लेफ्ट और राइट पैडिंग 10 + 10 20 हो गई और 5 + 5 10 हो गई, और 0 मार्जिन ली है इसलिए 350 टोटल उसकी विड्थ हो गई। The total width of element should be calculated like this. Total element width plus left writing plus right padding plus left border plus right border, right margin plus right margin plus right margin. The total height of the element should be calculated like this. Total element height bottom padding, top border and bottom border, top margin and bottom margin. इस तरह से हाइट भी कैलकुलेट की जा सकती है। 263 लिया है उसने हाइट, तो उसकी कितनी है ये देख लेंगे, उसके हिसाब से फिर इसको सेट करेंगे। तो दिस इज योर आउटपुट। यहाँ पर ये आया 2 वाइड 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 है और 263 लिया, तो ये कुछ कम होगा तभी उसको कम लिया है। अब आया बॉक्स मॉडल के बाद गूगल फॉन्ट। गूगल का अपना फॉन्ट है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज़ कर सकते? गूगल फॉन्ट googleapis.com CSS में जा कर के उसकी स्टाइल शीट को यूज़ करके, हमने बताया था एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आया एनिमेशन ऑफ बैकग्राउंड कलर, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? एनिमेशन माई मूव 5s इनफाइनाइट टाइम तक 5 सेकेंड के लिए माई मूव उसने डिफाइन कर दिया। बैकग्राउंड कलर रेड टू ब्लू जा रहा है। की फ्रेम माई मूव कहाँ से कहाँ तक है? रेड टू ब्लू, और विड्थ 300 है, हाइट 200 है। बैकग्राउंड कलर उसने क्योंकि स्टार्टिंग का रेड है तो रेड लिया है, और 5 माई मूव क्या एनिमेशन में डाला? 5 सेकेंड इनफाइनाइट। और उसके बाद रन करेंगे और माई डिव जो डिफाइन किया है, जहाँ माई डिव हमने बताया क्लास डिफाइन किया, आईडी डिफाइन किया, हैश से आईडी डिफाइन होती है। आईडी हमने डिवीजन में लगा दिया कि कहाँ वो दिखे। CSS एनिमेशन डू नॉट वर्क इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 एंड अर्लियर वर्जन। तो उसको उसी में हम रन करेंगे जहाँ पर वो रन होगा। तो आया, अब हम गूगल फॉन्ट को रन कर दें। ठीक है, ये देखो आ गया, रेड से ब्लू तक जा रहा है। ये सोफिया फॉन्ट है, वेलकम ट्राई इट, है ना। सोफिया फॉन्ट कैसे लिख रहा है? वेलकम ट्राई, हैंड राइटिंग में लिख रहा है। ठीक है, ये रेड से ब्लू तक जाएगा। देखो सारा फॉन्ट बदल गया, है ना। गूगल का फॉन्ट है, सोफिया फॉन्ट है, इसको गूगल से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं इमेज ट्रांसपेरेंसी। दिखे कितना ना दिखे, डिम दिखे, ब्राइट दिखे, कैसा दिखे। ठीक है, तो उसके लिए मेटा डेटा डिफाइन किया उसने। इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.000 कंटेंट, HTTP क्विक किया, XUA कंपैटिबल। ये सब सेटिंग आपको एज इट इज करनी पड़ेगी। जब
ये सब जब होगी तभी वो होगा। कंटेंट टेक्स्ट HTML कैरेक्टर सेट विंडोज 1252 लिया, HTTP इक्विप कंटेंट टाइप लिया, जनरेटर कंटेंट MS HTML 11.10.10.240.17394 लिया, मेटा कंटेंट IE ले लिया, है ना, ये 2 बार आ गया है। ठीक है, तो ये सेटिंग आपको एज इट इज कर देनी है। उसके बाद बॉडी में आएंगे, ओपेसिटी, इमेज ओपेसिटी का हम बता रहे हैं ना, इसलिए वो यहाँ पे लिख रहा ओपेसिटी बॉडी में लिखेंगे, जिससे पता लगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। स्टाइल इमेज को हम 0 से 1 तक ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपेसिटी 0.5 मतलब 50% ले ली उसने। इमेज ट्रांसपेरेंसी, एलिमेंट लोअर देन वैल्यू द मोर ट्रांसपेरेंसी, जितना कम वैल्यू होगी उतनी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। अगर इसको 1 कर दें तो एज इट इज़ दिखेगा जैसा कि वो था। ठीक, अब इसको रन करके देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी, इसमें प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है, इसकी इमेज की पाथ बदल गई है। तो इमेज ट्रांसपेरेंसी खोलें और यहाँ पर बॉर्डर, ये इमेज को फिर से ले आए, यहाँ पे किया, मान लीजिए ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, फाइल सेव कर दिया, इसको बंद किया और इसको रन किया। सेव कर लेता है। ये आया है ना, ओपेसिटी, इमेज ट्रांसपेरेंसी, इमेज ट्रांसपेरेंसी को बदल दे रहा है वो। ये आया, देखिए इमेज ट्रांसपेरेंसी फाइल भी बदल दे रहा है नाम ना, इसलिए इसको मिल नहीं रहा है, डिलीट। अब देखें, अच्छा 2 बार आ गया, 2 बार आ है। इसको सेव कर दो, फाइल सेव, अब रन करते हैं। ये 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 देखिए, इमेज में ट्रांसपेरेंसी आ गई, 50% डिम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम आए, अब नेक्स्ट हमारा है ओपेसिटी। ट्रांसपेरेंसी के बाद ओपेसिटी, ओपेसिटी भी वही है, डेस्कटॉप बॉर्डर, लेकिन इसमें एच ओवर भी लगा दिया है। रेजी के साथ क्या 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 करेंगे हम, एच ओवर भी लगा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओपेसिटी वाला तो समझ में आ गया। एच ओवर के लिए ओपेसिटी 1 कर दिया। अब जब एच ओवर के साथ ओपेसिटी 1 कर देंगे तो वो ओरिजिनल कलर में भी दिखेगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए इमेज सोर्स पूरा ले लिया, फिर इमेज सोर्स ये लिया है ना, इमेज ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा, एच ओवर सेलेक्टर साथ में, ठीक, एच ओवर सेलेक्टर। तो अब इसको फिर से बाहर से रन करना पड़ेगा। इसको ओपेसिटी, अब ये देखिए ये ओरिजिनल कलर में भी डिम तो हो ही रहा है, लेकिन ओरिजिनल कलर में भी दिखेगा। एक्चुअली शो इन ओरिजिनल कलर also and in highlighter. When we press the arrow key on picture, then it will give you a original color, otherwise dim opacity. अब आया कि हम पिक्चर को कैसे रोटेट कर सकते हैं, तो रोटेट एक्स मेथड। अब तीन तरह से हम रोटेट कर सकते हैं, 3 वे। रोटेट एक्स मीन्स हमने एक कोई फिगर बनाई, विड्थ 300, हाइट 100, बैकग्राउंड कलर येलो, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। अब ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स 150 डिग्री दे दिया हमने, माई डिव इज अ क्लास डिफाइन कर दिया है ना। अब रोटेट एक्स मेथड इसको कैसे करेगा, एक्स साइड में रोटेट कर देगा। तो माई डिव लिया, माई डिव को यहाँ पर डिफाइन कर दिया और माई डिव में लिख दिया दिस डिव एलिमेंट इज रोटेट 150 डिग्री। तो जब हम इसको करेंगे तो ये देखो, दिस इज अ नॉर्मल डिव एलिमेंट, दिस डिव एलिमेंट इज रोटेटेड 150। यहाँ पे इसका इंप्रेशन इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसको इंटरनेट नहीं मिल रहा। ये देखिए ये आया रोटेट एक्स मेथड है ना, एक्स की तरफ पलट जाएगा। अब रोटेट वाई करेंगे, रोटेट वाई क्या करेगा, देखो ये पलट के इधर आ गया, दिस इधर हो गया, दिस इधर था है ना, बस उसमें रोटेट एक्स की जगह रोटेट वाई लिख देंगे। इसी तरह रोटेट जेड होगा, जेड में ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 3D के लिए जेड यूज करते हैं, तो जेड में इस तरह से हो जाएगा। बस हमको डिफरेंस क्या है लिखना, रोटेट एक्स की जगह वाई लिख देना और वाई जेड लिख देना। देखिए ये डिफरेंस बस इतना है कि रोटेट वाई लिखना, और सारी चीजें सेम है। ऑल थिंग्स आर सेम, यू हैव टू राइट ओनली rotate y और z. This div element is rotated 150 degree, ठीक। और z में क्या करेगा, सारी चीज सेम रहेगी, रोटेट z कर देगा, ठीक है। इस तरह से हम रोटेशन कर सकते हैं CSS में। अब आया आइकॉन, आइकॉन बेल। अब इसमें डिफरेंट आइकॉन जो दिखते होंगे वो हम इसमें भी दिखा सकते हैं। वो कैसे दिखाएंगे, तो दिखाएंगे रन करके। उसके लिए बस हमें क्या करना है, आइकॉन का कोड याद रखना है जो हमको इंटरनेट से मिलेगा। अब बटन पे भी देखो बना दिया उसने, बेल बन गई, स्कल बन गया, एक्सक्लेमेशन बन गया। इसी तरह हम एनिमल्स भी बना सकते हैं आइकॉन से। उसके लिए बस हमको कोड इंटरनेट से लेना पड़ेगा। अब वो लिखते कैसे हैं वो इसमें देख लीजिए। ये आए यहाँ पे व्यू पोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1 किट फॉन्ट awesome.com। यहाँ से जावा स्क्रिप्ट में जा करके हम फॉन्ट को ले लेंगे, गेट योर ओन कोड एड फॉन्टवेसम, और इसके बाद यहाँ पे क्लास fs affable लिखा,
और स्टाइल फॉन्ट साइज 24 पिक्सल लिखा, यहाँ पे साइज 36 पिक्सल लिखा, यहाँ पे फॉन्ट साइज 48 पिक्सल लिखा और कलर रेड कर दिया। तो देखिए वहाँ पर जब हमने रन किया था उसमें लास्ट वाला बल जो था वो रेड था। ये देखिए लास्ट वाला बेल जो था रेड था। अगर और ये देखिए बॉर्डर वाला बेल आ रहा है, दिस इज अ बॉर्डर बेल, दिस इज अ क्रॉस बेल, है ना। स्लैश बेल आ गया, स्लैश बेल फिल साइज बेल बॉर्डर। फिर इसी तरह से स्कल बनाया उसने, इसी तरह से एक्सक्लेमेशन बनाया राउंड के अंदर। तो इस तरह से हम आइकन्स भी बना सकते हैं। इसमें एनिमल्स एनिमल सब बन जाते हैं, ड्रैगन है, एलिफेंट है, बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। उसको आप लोग पढ़िए तब सब आ जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। So today I am closing it. Lots of things you have learned today, and please subscribe if you like. Thank you viewers.